इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज फ्लक्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, हम लोगों ने पढ़ा फैराडेज लॉ में पढ़ा कि जब तक हम लोग फ्लक्स का चेंज को मेंटेन करेंगे तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडे सेकेंड लॉ में बताया गया, ईएमएफ का वैल्यू बताया गया, ईएमएफ इज डी बाई डी, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी बाई डी। उसके बाद लेंज ने बताया कि ये जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ईएमएफ जो जनरेट होता है, ये इसका कॉज को अपोज करता है, मतलब ईएमएफ जनरेट जो होता है, फ्लक्स जो चेंज होता है इसको अपोज करता है और इसके कारण ये ईएमएफ जनरेट करता है, मतलब करंट फ्लो करके वो फ्लक्स को अपोज करता है। और इसके ऊपर बेसिस करके हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था और आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन करेंगे। और अभी हम लोग फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ मिला के जानते हैं माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, माइनस फॉर फैराडेज लेंज लॉ एंड डी बाई डी टी फॉर फैराडेज लॉ। और अगर नंबर ऑफ टर्न n हो जाए तो हम लोग लिखेंगे माइनस m डी बाई डी टी। सो ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज माइनस m डी बाई डी टी। अब देखो इसमें से और कुछ छोटा छोटा बात हम लोग इससे चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, इससे हम लोग कुछ छोटा छोटा बातें चाहे तो डिराइव कर सकते हैं, जैसे करंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट माइनस m डी बाई डी टी बाई r वी कैन राइट। अच्छा, एट द सेम टाइम करंट क्या है? करंट है dq बाई dt, so that is minus n d phi by dt by r. So this dt we can cancel. So if we cancel this one, so dq is minus n by r d phi, that is also we can say. और इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि change in flux, change in total rate of change of total change in charge, that is the change in flux. और यहाँ पे एक और बात है, d phi जो है that is the flux final minus flux initial। तो ये मेरा उतना जरूरत नहीं है, ये तो हम ये जानते हैं, तो ये उसी से कोरिलेट कर सकते हैं, ये मेरे लिए उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब इस फॉर्मूला के ऊपर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ मतलब एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट a coil with a average diameter, a coil with a average diameter 0.02 meter, 0.02 meter is placed perpendicular to the magnetic field of, is placed perpendicular to the magnetic field of 6000 Tesla, 6000 Tesla, if the induced EMF is 11 volt. If the induced EMF is 11 volt, what then if the induced EMF is 11 volt, when magnetic field change to 1000 Tesla, so we can say this is the initial magnetic field, the final magnetic field is 1000 Tesla. तो क्या हो रहा है देखो, if the induced EMF is 11 volt, comma, when the magnetic field is changed to 1000 Tesla in 4 seconds. In 4 seconds मतलब dt is 4 seconds. Change in time is 4 seconds. What is the number of turn in the coil? So you have to find out the total number of turn. So very simple question. कि induced EMF minus n d phi by dt. Now minus n flux final minus flux initial by time, which we can say n flux initial minus flux final by time. So what we can write, induced EMF in magnetic field into area initial, because same area diameter is given, flux initial means magnetic field into area initial, magnetic field final into area by dt. So we basically write n B initial B final into area by time. Now we have all the information, like we have
11 volt we have, number of turn we have, and we have to find out initial magnetic field is 6000, final is 1000, area is pi r square, r is 0.02 means, and this is the diameter, so radius is half of the diameter, so 0.01 square by dt is how much, 4 seconds. So if we overall calculate is n into 5000 into 22 by 7 into 10 to the power minus 2 whole square by 4. So which is n into 5 into 10 to the power 3 into 22 into 10 to the power minus 4 by 7 into 4. अब देखो मैं इसको काट सकता हूं, इसके साथ 2 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 के साथ काट सकता हूँ, -1, 5 5 10 और ये 10. So n is 7 into 4, that is 28. Is it clear, everyone? Yes, sir. सबको समझ में आया ये? इसके बाद देखो, इसके बाद वाला जो पार्ट है, which is very very important, so many times, so many way examiner can ask you question in board exam as well as in entrance exam, they can ask you the question. देखो क्या क्वेश्चन है, हेडिंग ये है तुम्हारा मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, नॉट इमोशनल, मोशनल ईएमएफ. जा, ये तो आया ही नहीं स्क्रीन पे. मोशनल ईएमएफ. अब देखो ये मोशनल ईएमएफ में क्या क्या आता है. पहला वाला जो आएगा विथ रेल रॉड, विथ रेल रॉड, मतलब मेरे पास एक रेल रॉड होगा. ये विथ रेल रॉड का क्या मतलब है? इस विथ रेल रॉड का मतलब है मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है काफी बड़ा, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक रॉड को इंट्रोड्यूस करूं, टू पैरेलल रेलवे ट्रैक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेल रॉड. रेलवे शायद तुम लोग देखे होंगे, हाँ, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है. So infinitely long and metallic. So two infinitely long metal wire. हम लोगों ने यहाँ पे अभी मान लिया कि इस मेटल रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है. हम लोग एक स्पेशल केस में देखेंगे कि अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो हमें क्या करना है, लेकिन अभी हम लोगों ने मान लिया इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अब इसके साथ एक एंड पे मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और इसके ऊपर मैंने एक रॉड, मेटालिक रॉड को मूव करा रहा हूं. सो इसके ये सब के साथ भी बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस होता है, तो मैं एक एक करके सब बताऊंगा. ये जो लेंथ है, ये लेंथ एल है. कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ये वाला जो बाहर वाला लेंथ है ये 1.5 दे देता है और अंदर वाला लेंथ एल दे देता है. तो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे अंदर वाला लेंथ लेना है, बाहर वाला ये दोनों का मेरे को कोई काम नहीं है. और अभी हम लोगों ने माना कि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है. सो हम लोगों ने माना लेट द ये था रेल और ये है रॉड, दोनों का डिफरेंस समझो, ये दोनों है रेल, ये है रॉड. सो लेट इंटरनल रेजिस्टेंस
of the rod is negligible. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज नेग्लिजिबल। हम लोग पहला केस में ये मान लिया कि रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर लिया है या है नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? अब देखो, मानो ये यहां से dt टाइम में ये d डिस्टेंस या dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि लेट इन टाइम dt the rod travel dx distance. Is it clear? Is it clear everyone? In time, Yes, sir. in time dt the rod travel dx distance. ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो तीन बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, रॉड जैसे ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, जैसे जैसे ये जा रहा है, इसका एरिया देखो बढ़ रहा है ना घट रहा है? Sir, increase. बढ़ रहा है। As the area increase, magnetic field is uniform, so flux is increasing or decreasing? Increasing. Increasing. Increasing, because as the magnetic field is increasing, so flux is a magnetic field is constant, area is increasing, so your flux is increasing. Now induced EMF will try to oppose it, and as the induced EMF will try to oppose it, according to Lenz law, the direction of current create होगा डॉट होने के लिए I. देखो, तुम लोगों ने क्लास 10 में जब पढ़ा था, तुम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ा है। तो ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू ऑपोजिशन, मतलब लेंज लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मेरे को सबसे पहले देखो, अगर ये dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इतना का ड्यूरिंग dt टाइम ये जो चेंज इन फ्लक्स हुआ, इस चेंज इन फ्लक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? Magnetic field into change in area. Everyone satisfied? Yes, sir. Yes, sir. If magnetic field into change in area, so what is the area of this one? Length into dx. Is it Yes, clear? sir. So if length into dx, now according to the definition, magnitude of induced EMF d phi by dt. So what we can write? BL dx by dt. So what we can write? BLV. And that's why by motion we can generate EMF. That's why it's called motional EMF. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So up to this you have to write for all question, you have to write that part. Now as in this part, we suppose, as in this part, we suppose the rod resistance of the rod is negligible. So how much is the current? Very simple, EMF by external resistance only now is there. Is it clear? Yes, sir. So on that basis, what we can write? Motional EMF by resistance. So see, examiner can say you find out the motional EMF, find out the current in the circuit. Now they can ask you or they can demand from you to find out. They can demand from you to find out force acting on the rod. So don't be very panic for that, or don't be what is the force? ILB. All we know how to find out the force. Is it clear? Yes, sir. So force is ILB. I कितना है मेरा? BLV by R. Length into B. So what we can write? B square L square V by R. Can we write? Yes, sir. So this is the third part. Now the fourth part is that they can ask you power. What do you mean by power? Force into velocity. Force is B square L square
V by R into V, that is B square L square V square by R, which is EMF square by resistance. Is it clear? Yes, sir. Everyone? Everyone? Yes, sir. Okay, now see, so this is the first part. Now in the same question, see the whole scenario change if they ask you, कि let small r is the internal resistance of the rod. Are you getting my point? Let smaller is the internal resistance of the rod up to this. Here it is not mentioned. So as they are not mentioned, if they mention it, suppose 1.5 and this is L. So you understand how to ratio it. So find out the resistance. So in general, suppose this is the resistance और ये एकदम छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. Is it clear? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So now this one is your, it show like a battery EMF. So if you have a battery and now we know that current is this, so they can put you like a question. They can say if this terminal is P, this terminal is Q. If they say this terminal is P, this terminal is Q, what is the polarity of P and what is the polarity of Q? Anyone tell me from the data? The current will flow in this direction. Current कहाँ से निकलता है? Positive terminal और negative terminal? Current কোথা থেকে বের হয়? Positive. So positive terminal से current निकला negative terminal में घुसा, it will be behave like a battery. तो ये मेरा प्लस पोलैरिटी, ये मेरा माइनस पोलैरिटी, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मेरा इंटरनल, ये मेरा EMF which is R is the internal resistance. ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है. सबको समझ में आया? हम लोग करंट लेक्चर ऑलरेडी कर चुका है. Yes, sir. Yes, So sir. on that basis, now anyone tell me what is the value of current now? EMF by total resistance external plus internal. So that means BLV by R plus R. Is it clear? So now they ask you a new question. Find the current. So your answer is different. Now they ask you what is the terminal voltage? V of PQ, terminal voltage. What is the definition of terminal voltage? Current into external resistance or EMF into EMF, current into internal resistance or current into external resistance, which is BLV by R plus R into R. Is it clear? Yes, sir. Just give me 1 minute. Achha. So you understand how to find out the terminal velocity, the terminal voltage. Utkarsh, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So after terminal velocity, when you have voltage, when you get the terminal voltage, now again you can find out the force applied on the rod. Now the answer is again ILB. So now your I is a little bit different. VLV by R plus smaller into LB. So B square L square V by R plus R. And now the fifth one is the power, again force into velocity, that is B square L square V square by R plus R.
that is EMF square by R plus R. So you understand if the resistance of the wire you introduce, how the values are changed. Is it okay? Yes, sir. Now again they give you one, they add you one more thing. They add you one more thing. Suppose they say you कि ये जो रेल रॉड है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है. सही बात है, ऐसा नहीं है कि एकदम रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो ही सकता है. So let D ohm per unit length resistance of the rail rod. तब हम क्या करेंगे? तो फिर मेरा टोटल चीज अब चेंज हो जाएगा, और फिर से मुझे ये नया करके लिखना पड़ेगा. सो ये जो अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, ये मेरा बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा. अच्छा, इसके लिए तुम्हें कोई एक पॉइंट पे उसको बोल देना पड़ेगा इतना टाइम में या इतना. देखो ये द रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो ये तुमको बोल देगा आइदर when the rod is at a distance of x, और देख से you कि after, मानो तुम्हारा पास बोल दिया velocity is 2 meter per second और after 5 seconds. So what do you mean by 5 seconds? Velocity into time, that is 2 into 5, that is 10 meter. Are you getting my point? Yes, sir. At an instant of 10, when the distance is 10 meter. So या तो वो तुम्हें टाइम दे देगा या तो वो तुम्हें डिस्टेंस दे देगा जिससे तुम डिस्टेंस निकाल सको. जहां तुमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब मुझे बोलो टोटल रेजिस्टेंस एट दैट इंस्टेंट इंटीग्रेट होगा. क्या हो जाएगा? R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो दो रेल रॉड है, इधर भी है इधर भी है, इधर चला मैं उधर चला. इज इट ओके? Yes, sir. तो क्या दिया इसका? B ओम पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ कितना है? 2x. तो हम इसको क्या लिखेगा? B into 2x. कैन वी राइट B पर यूनिट लेंथ में लेंथ कितना है? 2x. समझ में आया? Yes, sir. So now the current is how much? Current is EMF BLV by R plus B into 2x. जब तुम्हें करंट मिल गया तब तुम्हें फोर्स मिलेगा ILB. जस्ट पुट द वैल्यू. पावर कितना मिलेगा? फोर्स into velocity. Just put the value and terminal velocity of the wire PQ. At that instant, you can say EMF minus current into internal resistance or current into external resistance. यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे external resistance तुम्हारा R plus 2bx है. Is it clear? ये इसका इंटरनल, बाकी पूरा एक्सटर्नल है ना? Yes, sir. तो देखो एक ही क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके कितना अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है. तो एक ही क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का 4 से 5 पार्ट पूछ सकता है. एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ सकता है. फ्रॉम एक क्वेश्चन वो 15 क्वेश्चन पूछ सकता है. आई बात समझ में? Yes, sir. इसके बाद तो ये तो हुआ एक पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट इज दैट if we remove the rail rod, then what happens? If we remove the rail rod, then what happens? तो अब हम अगर इसका रेल रॉड का रेल को ही हटा दें, पटरी को ही हटा दो, अब इसका पटरी को ही हटा देंगे.
तो अगर मैं पटरी को हटा दूं तो क्या, अगर मैं पटरी को हटा दूं तो क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा? लेट्स सी। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है, ये जिसका लेंथ कितना है L, जिसको हम लोग v वेलोसिटी से, मेटालिक रॉड है, v वेलोसिटी से ले जा रहा है। v इज यूनिफॉर्म। हाँ, तो क्या ये ईएमएफ जनरेट कर सकता है? Anyone tell me, is it able to generate EMF? Sir, no, sir. Because B is uniform. The answer is, क्या बोल रहा है बेटा? B is uniform. Sir, Sangram. But this is not the answer. Answer is yes, they can. फोर्स तो जनरेट होगा सर, देखो ना, फोर्स जनरेट होगा। वेरी गुड, फोर्स जनरेट होगा। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले ये जो मेटल है, मेटल के अंदर ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो मानते हो ना कि मेटल के अंदर में ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन yes, है। sir. अब इस ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इस ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, लगेगा। Yes, sir. अब ये है इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स नेगेटिवली चार्ज में है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब ये फोर्स ऊपर नहीं लग के नीचे लगेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण जितना इलेक्ट्रॉन है ये सब आके नीचे जमा होगा, होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आके जमा होगा, so what do you mean by that? The upper portion, that is the deficiency of the electron. Yes, sir. So, and deficiency of the electron is represented by plus sign. Yes, sir. Are you getting my point? तो ऊपर में प्लस साइन होगा, नीचे में माइनस साइन होगा। जहां ऊपर में प्लस साइन होगा, नीचे में माइनस साइन होगा, मतलब नीचे में प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, ऊपर में प्लस चार्ज जनरेट होगा। As well as the plus charge generated on the upper portion and minus charge generated on the lower portion, an electric field is generated. Yes, sir. Electric field is generated from plus to minus, and we know in presence of electric field, if we introduce a negative charge force applying the opposite direction, electric force, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So electric force applying the opposite direction. अब मजा की बात देखो, जैसे this magnetic field is fixed, okay, this magnetic force is fixed, as this magnetic force is fixed, तो यहाँ पे जो है ये तो फिक्स है, तो फिक्स है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन आते जा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ये भी स्ट्रॉन्गर हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर हो रहा है, नेट फोर्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो फोर्स है धीरे धीरे इसका इक्वल होने का कोशिश कर रहा है। करते 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 विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम,
यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे इतना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि this electric force is balanced by this magnetic force. So when at the time when electric force balanced by magnetic force, that time the situation is called steady state. So at steady state, what we can say, at steady state, electric force is equals to magnetic force. Can we say at steady state, Yes, sir. electric force equals to magnetic force? So when the electric force equals to magnetic force is E into capital A, and Yes, sir. magnetic force is E V B. So E cancel. So can we say E equals to VB? E is the electric field. Can we write it? Yes, sir. So मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, मुझे दो पोलैरिटी का बीच का डिस्टेंस मालूम है, लेंथ. सो टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है. जिसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ओपन सर्किट है. दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ. VBL. So this voltage is the EMF or terminal voltage is how much? VLV या motional EMF. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये तो एक पार्ट हो गया. अब इस क्वेश्चन में फिर से बोलेगा कि हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है. बल्ब रखो, बल्ब जलाओ, इतने रखो. यह बल्ब. Let the resistance is R. तो जहां मैंने इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया वहां मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूं ना कि लेट आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड. और एट द सेम टाइम मैं बोल सकता हूं ये P है, ये Q है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे कैन आस्क यू व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ P, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ Q, इफ दे गिवन यू कि वेलोसिटी इज दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट एंड ऑल. अब जहां मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम है, नेक्स्ट इज सेम EMF by R plus R, that is BLV by R plus R. जहां मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम चल गया. আমার ইমেল আইডিটা খুলে দেখো না একবার ভালো করে কি কি দিয়েছে না দিয়েছে. Force is ILB, that is B square L square V by R plus R. Power is force into velocity, B square L square V square by R plus R, that is EMF square by R plus R. Is it okay? Yes, sir. সবাই বুঝেছিস? হ্যালো. Yes, sir. Yes, sir. প্রিয়দর্শিনী Yes, sir. বুঝেছিস? আচ্ছা, now a very important note. Now a very important note. Numerical solving strategy. इस तरह का क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3-4 तरीका का डिफरेंट क्वेश्चन देता है. सर इस रॉड में भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो फिर वो भी सेम होगा. क्या रॉड में इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा रॉड? जो अभी सर ये क्वेश्चन किए हम लोग, सर उसमें लिखा तो स्मॉल आर, वो इंटरनल रेजिस्टेंस था. इंटरनेशन ऑफ द रॉड. हाँ ठीक है सर. मैंने क्या लिया, इस रॉड के लिए लिया स्मॉल आर और ये पूरा के लिए मैंने आर लिया. ठीक है सर. अब देखो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्ट्रेटेजी. इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर
दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हमें जो लेंथ लेना है वो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एवरीवन समझा मेरा बात? Yes, sir. अगर तुम्हें ये समझ में आया है, अगर तुम ये दिमाग में रख सकते हो, तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। কবে থেকে যে স্কুল সেন্টার খুলবে, দুর্গাপুজোর পরে খুলে দেবো সাথে যা আমি দেখা যাবে। सितंबर के बाद से सेंटर खुलेंगे तो तुम लोग पढ़ने आओगे? कोई कुछ कहता ही नहीं। सितंबर के बाद सेंटर खुलेगा तो तुम लोग आओगे पढ़ने? I'll have to talk to my mom. चलो स्कूल तो शायद 21 से शुरू हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। सर कब सर? এখন আমি কিচ্ছু বলবো না, ভিডিও রেকর্ডিং অন আছে। I think all of you understand what I want to say. You have 9 questions and find out the EMF for each question, and for that I give you 5 minutes. Okay, and your time start now. So we can try. The first question is, see, velocity and length are perpendicular to each other. So induced EMF is VLV.
नाउ इन दिस वन देखो ये लेंथ है तो इसका थिकनेस कितना है 0 Zero. 0। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम इसमें देखेंगे इसको हम अगर बीच में से डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा θ/2, ये होगा θ/2। तो along the base cos perpendicular with the base side, तो ये होगा और ये होगा, ये हो गया L sin θ/2, ये हो गया L sin θ/2। तो ये लेंथ और ये लेंथ मिला के हो गया B 2L sin θ/2 into velocity। अब देखो ये वाला तीनों एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा सा है, तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स कांस्टेंट। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा चेंज इन ईएमएफ कितना हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा 0, ईएमएफ कितना होगा 0। अब इसमें देखो, इसमें ये दोनों के लिए तो 0 है क्योंकि ये वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये दोनों के लिए 0 है। लेकिन ये दोनों में ईएमएफ जनरेट होगा और एक दूसरे का ऑपोजिट। मतलब अगर मैं बोलूं इसमें ये प्लस है ये माइनस है, ये देखो इसका उल्टा साइड में जा रहा है, मतलब ये माइनस ये प्लस। तो क्योंकि ये दो एक दूसरे का ऑपोजिट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके सामने आ रहा है, तो ये दोनों का अगर ईएमएफ है और ये ईएमएफ है, आप देखो अगर लूप क्रिएट करते हैं ये प्लस, तो ईएमएफ टोटल क्या हो गया, ईएमएफ प्लस ईएमएफ मतलब 2 ईएमएफ मतलब 2BLV। समझ में आया? इसमें भी देखो वेलोसिटी का साथ मुझे परपेंडिकुलर करना है, वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर क्या है v, और ये क्या हो गया डायमीटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज B2RV। और इसमें भी ये कुछ दिन पहले पीएमटी में आया था, ये दोनों आईआईटी में आया है, ये एक बार नीट में आया था, ये एक बार आईआईटी में आया है, और ये वाला अभी तक नहीं आया है। पहले मैं इसको देता था, ये आ गया, आप ये कर सकते हो। तो देखो अगर ये वेलोसिटी है और ये कितना R 2R 4R, so induced EMF is B4RV। Is it clear? सर ये तो सारा समझ में आ गया। सर ये 7th वाला 0 नहीं होगा? नहीं 7 वाला इसलिए 0 नहीं होगा, देखो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये जा रहा इधर, इसका जो ईएमएफ का वैल्यू होगा और ये इसका इधर नहीं जा रहा। जैसे इसमें क्या होगा, ईएमएफ ऐसे, इसका भी ईएमएफ ऐसे। तो कर्चॉफ लॉ लगाओ ABCD। देखो अगर मैं A से स्टार्ट करूं, फर्स्ट वी गेट द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड देन वी गेट द नेगेटिव पोलैरिटी, नेट 0 हुआ। ओ अच्छा, यहाँ पे देखो अगर मैं ABCD लेता हूँ, कर्चॉफ लॉ लगाऊं, वी मूव फ्रॉम A टू B, वी गेट द नेगेटिव ईएमएफ, फिर देखो मुझे नेगेटिव मिला, तो दोनों को ऐड कर रहा है ना। यस सर, समझा? तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ऐड अप हो गया। सेम डायरेक्शन में होता तो ईएमएफ दोनों का पैरेलल वोल्टेज है, सो नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, यस सर। मतलब देखो तुम्हारा पास अगर ये एक बैटरी है और ये एक अगर बैटरी है और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। समझा मेरा बात? Yes, sir. तुम खुद ही देखो ना, ये अगर प्लस लोगे तो ये माइनस लोगे, नेट 0 हो जाएगा ना। समझा मेरा बात? यस सर। हाँ सर। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो देखो एक्चुअली कल मैं